جو امیر تنظیم تھے انہوں نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 میرے متعلق کوٹ کرتے ہوئے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو ورنہ وہ لا علمی میں تمہارے سچے معبود کو گالیاں دیں گے۔ اندازہ کریں اس آیت کا میرے سے کیا لینا دینا تھا؟ کیا میں ہندوؤں کے خداؤں کو گالی دیتا ہوں؟ کیا میں نے کرسچنز یا جیوز نے جن لوگوں کے بارے میں غلط عقیدے کلیم کیے ہیں انہیں گالیاں دیتا ہوں؟ نہیں، ان کے بابوں کو ہاتھ ڈالتا ہوں۔ تو وہ کافروں والی آیت میرے اوپر لگا رہے ہیں۔ یہ کافروں سے متعلق کہا گیا تھا کہ ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی نہیں دینی، یہ تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے۔ کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا معبود کوئی اور ہے اور میرا معبود اور ہے؟ ایک ہی ہے۔ ہاں ان معنوں میں اور ہے کہ جو کوالٹیز وہ اپنے معبود کی یا اپنے بابوں کی کلیم کرتے ہیں وہ قرآن و سنت میں نہیں لکھی ہوئی۔ اسی کو میں نے عرض کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، خدا ایک ہی ہے، تعلیمات ڈیفرنٹ ہے، تو گویا کوئی اور ہی خدا مانے ہوئے وہ۔ تو یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو نہیں۔ تو یہ فرقہ باز علماء اور ان کے بزرگ آج کافر ہونے کی اناؤنسمنٹ کر دیں، ہم ان کو آڑے ہاتھوں لینا چھوڑ دیں گے، پیار محبت سے علمی اختلاف کریں گے۔ لیکن تم نام لو ہمارے پیغمبر کا، تو بھائی غداروں کے لیے یہ آیت نہیں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ قرآن کو ذرا سمجھو، غداروں کے لیے حضرت عمر کی تلوار ہے اور میری زبان ہے۔ عزتیں اویل کی تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے اور پھینکی جا کے دیوبند شریف، بریلی شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف۔ غدار ہو تم اپنے نبی کے۔ دیکھو پھر اللہ نے تم سے کیا بدلہ لیا، کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اون سمجھ آئی میں کتنے کہنا وہاں کہ بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں؟ ہاں، یعنی چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ والے بابے، شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ بہت چھوٹا جملہ ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ پٹو انہوں نے قبراں، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا، علمی اختلاف کرتا ہوں۔ تو یہ آیت بالکل مس کوٹ کی ہے آپ نے۔ آپ قرآن و سنت کا علم حاصل کریں، آپ کو پتا چلے کہ یہ آیت غداروں سے متعلق نہیں ہے، یہ کافروں سے متعلق ہے۔ غداروں سے متعلق یہ ہے کہ انہیں کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ اسلام کا نام لے کے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپے، انہیں آڑے ہاتھوں لیا جائے گا۔ ہاں۔ پھر انہوں نے دوسری آیت کوٹ کی سورہ النحل کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ، اور مجادلہ کرو احسن طریقے سے۔ تو مجھے سمجھا رہے تھے کہ آپ مجادلہ احسن طریقے سے کریں۔ یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ ایک بندہ جس نے پوری زندگی گولف کی نازک سی سٹک کے ساتھ ایک نازک سے بال کو کھیلا ہو، وہ کسی کرکٹر کو یہ مشورہ دے کہ اتنے وزنی بیٹ کے ساتھ اتنی وزنی بال کو آپ نے ہٹ کیسے کرنا ہے، تو اسے کہا جائے گا بھائی تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو بالکل برگر اور ممی ڈیڈی بندہ ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اور تو ہمیں یہ مشورہ دے رہا ہے کہ حکمت کے ساتھ اور مجادلہ کرنا ہے آسان طریقے سے۔ جی الحمدللہ، آپ آسان طریقے سے ذرا مجادلہ کر کے بتائیں نا، تھانوی رسول اللہ کے اوپر، ہاں چشتی رسول اللہ کے اوپر، تو لگ پتہ جائے گا۔ سرکار نہ آپ کی ہمت ہے نہ ڈاکٹر صاحب کی ہمت تھی کہ ان باتوں پہ بات کریں، ورنہ فرقہ دیوبندیہ ان کو اپنی مسجد میں درس نہ دینے دیتا۔ جو کام آپ کر نہیں سکتے تو اللہ کے بندوں مجھے کیوں مشورہ دے رہے ہو؟ چلو میں نے تو اپنے طریقے سے کیا، تو اسی یہ کام کر کے دسو، اور بنیادی چیز ہے، ظاہر ہے بنیادی قاعدہ ہے، مجادلہ کرو آسان طریقے سے۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں جو اختلافی موضوعات کے اوپر بولتا ہوں۔ اگر کوئی ہے تو پروڈیوس کریں، اول تو بندہ ہی نہیں ملنا، اور جو ملے گا وہ کہے گا کہ دیوبندیوں اور اہل حدیث کی اذان کا کیا احترام، اے وابیاں دی اذان ہے، اس کا کیا احترام، اے تے سوراں دے سور نے۔ کہنا انہاں بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے گڑا دے اے تے سور چلو چلیے۔ تو مجھ سے سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں جو اختلافی موضوعات کے اوپر بولتا ہوں۔ آپ لوگوں کی تو جرت ہی نہیں بولنے کی۔ چلیں آپ آسان طریقے سے ذرا تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کے اوپر بول کے بتائیں، جناب لائف ونریبل ہو جائے گی، گھر سے نہیں نکل سکیں گے۔ مشورے دیں دینے منو، آپ کرو نا سرکار، منو چھاڑ دو، میں تو غلط طریقے نال کر رہا، تسی صحیح طریقے نال کرو، بس
हवा निकल गई, हाँ फिर वही होगा, गल्ला सुनो। तो अल्लाह का शुक्र है मैं सॉफ्ट तरीके से चल रहा हूं, और आप जिन बुजुर्गों के मानने वाले हैं, जिन बुजुर्गों के फिरकों की कोख से आपकी तंजीम ने जन्म लिया, उनकी जुबान भी मैं आपको बरकत के लिए पेश कर देता हूं। इस तो बाद मीर साहब बड़िया गाला पैणियां जे, यार क्यों छेड़ा इंजीनियर साहब को, छेड़ा तू सी मगर साढ़े पैक है जी, इसलिए कि भाई आपके मीर साहब इस वक्त आपके फ्रंटमैन बने हुए, और उनकी तंजीम भी बेचारी भोलपन में, और वो मीर साहब भी मैं कहता हूं भोलपन में ये समझ रहे थे। तो मेरा काम है ना उनकी इस्लाह करना। तो मैं इन्हें बताता हूं कि इनके बुजुर्गों की क्या लैंग्वेज थी, किस तरह वो आसान तरीके से मुजादला करते थे। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, मैं अगर उनके मुजादले की बातें इनकी किताबों से बता दूं, उसके बाद भी ये लोग उनके खिलाफ वीडियो ना रिकॉर्ड करवाएं और अपनी तोपों का रुख उस तरफ ना करें, तो इसका मतलब है ये मुझे बताने में मुखलिस नहीं है, किसी के फ्रंटमैन बने हुए। बिल्कुल है कि नहीं ऐसा? लो जी, टाइम क़यामत आ गई, बोल के जाते, कोई भी नहीं बोलेगा। उन बड़ों के कहने के ऊपर मेरे बारे में सारे बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब मैं उन बड़ों के इल्मी कपड़े उतारता हूं, तो उनके बारे में बात करने के लिए लोग तैयार नहीं होते। तो सुने जनाब, अहमद बरेलवी साहब ने जब हुस्सामुल हरमैन लिखी 1905 में, जिसमें उलमा देवबंद पे उन्होंने कुफर के फतवे लगाए, तो चले उनसे तो जो भी बकौल इनके मिस हैंडलिंग हुई, उसके जवाब में जो किताब इन्होंने लिखी उलमा देवबंद ने, उस किताब का नाम रखा अल मुहन्नद अल मुफन्नद। हिंद की तलवार एक सठियाए हुए बाबे के ऊपर। और सठियाया हुआ बाबा किसे कहा? बुजुर्गान दीन को। जी, तुम्हारे बुजुर्गान दीन के जितने मानने वाले हैं ना, उनसे डबल अहमद बरेलवी साहब के मानने वाले हैं। तो ये जा दिल हुम बिल्लती ही अहसन फिरके देवबंदिया के बुजुर्गों ने क्यों नहीं किया अहमद बरेलवी के लिए अल मुफन्नद लिखा? पागल बाबा। और अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सठियाए हुए बाबे के ऊपर। और उसमें उन्होंने कहा कि अहमद बरेलवी और इनकी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया। जिस तरह के अंबिया पर शयातीन हमलावर होते थे, ये उलमा देवबंद रदी अल्लाह अन्हुम पर हमलावर हुए। 14वीं सदी के मौलवियों रदी अल्लाह अन्हुम। जा लो सामो। और इस पे अशरफ अली थानवी साहब ने सिग्नेचर किए हुए अपने। 30 से ज्यादा उलमा देवबंद के इस पे सिग्नेचर है, बाद वालों के भी सिग्नेचर है। हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब, जिनको अपना मुर्शिद मानते थे, यूसुफ लधियानवी साहब, उनके भी इस पे सिग्नेचर हुए हैं। फिर तकी उस्मानी साहब कहते हैं अल्लाह ने हमारे बुजुर्गों को ऐसा बनाया था, वो तो बड़े एहतराम से करते थे। हमारे हज़रत हकीम उल उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक शख्स ने कहा कि जी अहमद रज़ा बरेलवी ने तो ये बात लिखी है, इस तरह कह दिया। आप जानते हैं कि मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी जो हैं, उन्होंने हमारे अकाबिर के खिलाफ कुफर के फतवे दिए, तो हज़रत ने डांटा कि तुम ऐसे नाम क्यों ले रहे हो अहमद, बगैर किसी ताज़ीमी लक़ब। मौलवी कहते, मौलाना कहते, मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी कहते, तुमने सिर्फ अहमद रज़ा खान बरेलवी क्यों कहा? गो यानी गोया इसको भी उनकी तौहीन समझा और टोका कि ठीक है तुम्हारे खिलाफ दूसरे मसलक के आदमी है, हमारे ऊपर फतवे भी लगाए, लेकिन हम अपनी जबान को गंदा नहीं करेंगे, हम अपनी जबान से उनकी तौहीन नहीं करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अकाबिर को ऐसा बनाया कि अपनी जबान को हमेशा दायरे में रखते। तो मैं सरकार ना अल्लाह ने आपके बुजुर्गों को ऐसा बनाया था, ना मुकालता करो अपने बुजुर्गों दिया। शैतानी लश्कर। अच्छा, ये तो उन्होंने बरेलवियों के बारे में कहा ना। अहले हदीस वैसे ही बेचारे गेड़े च आ गए, क्योंकि उस वक्त सूफी उलमा बैठे हुए थे। 1925 से पहले की बात है, ये 1906 की बात है। तो अहमद बरेलवी ने इल्जाम लगाया कि ये देवबंदी जो है ना, ये वाबी है। तो देवबंदियों ने अपनी वाबियत को खत्म करने के लिए, जाहिर है वाबियों को फिर गालियां निकालनी थी, उन्होंने उस वक्त के सूफी उलमा को लिखा जवाबन कि आप वाबियों की बात कर रहे हैं, हम तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उनकी पूरी जमात को खवारिज का एक फिरका समझते हैं। खारजी। आज रियाला ने चक्कर देवबंदी वाले हदीस एक हुए में। और ये सिर्फ अल मुहन्नद में नहीं है, इससे पहले जो इब्न अब्दीन शामी था ना, जो इनका बड़ा बाबा था, जिसने दुर्र मुख्तार पे हाशिया लिखा है, रद्दुल मुख्तार फतावा शामी, जिसमें उसने बकवास लिखी है कि अपने पेशाब और खून से सूरह फातिहा का तावीज भी लिखा जा सकता है। जी हां, अल्लाह ने आपके बुजुर्गों को ऐसा बनाया था। ये वो इब्न अब्दीन शामी, उसने भी मोहम्मद बिन वहाब साहब को खवारिज की जमात लिखी है। अब ये वजादिल हुम बिल्लती ही अहसन, ये है, ये उस किताब के अंदर उन्होंने जो यानी अपने मुखालफीन के बारे में जो कुछ बोलना था वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा बहुत सारी बातें मैं बोल सकता हूं, लेकिन फिर टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरा काम यह है कि लोगों को बताया जाए कि टूटी कमद कहां। असल में प्रॉब्लम बड़ों ने खराब किया, जिसकी वजह से आज उम्मत में इंडिया के 2 शहरों की बुनियाद के ऊपर फिरके बन गए।
1866 में देवबंद मदरसा बना, इससे पहले दुनिया में कोई मुसलमान देवबंदी नहीं था। जिस फिरके की उम्र मुश्किल 150 साल है, वो ये कह रहा है हम असलाफ के अमीन है। अच्छा, अगर आप अमीन हैं तो बरेलवी भी तो हनफी है। उनका मदरसा बना है 1904 में मंजुल इस्लाम बरेली में। उससे पहले दुनिया में कोई मुसलमान बरेली नहीं था। बरेलवी देवबंदी इंडिया के 2 शहरों के नाम के ऊपर फिरके बन गए। कहते हैं नहीं दोनों ही हनफी हैं। अच्छा, दोनों हनफी हैं तो एक दूसरे को काफिर क्यों समझते हैं, मस्जिद क्यों अदा करते हैं, सर क्यों फाड़ते हैं एक दूसरे के इस्लामाबाद में मस्जिद हासिल करने के लिए? नहीं, ये बाद में खराब हुए हैं। जो पुराने हनफी थे ना वो बिल्कुल ठीक थे। तौबा तौबा पुराने गुरु 400 साल तक, 1517 से 1917 तक सल्तनत उस्मानिया ने खाना काबा में 4 मुसल्ले डाले हुए थे। उनकी कलट तस्वीर भी मौजूद है। जब वो सऊदी हुकूमत ने मुसल्ले उठवाए ना, बिल्डिंग्स उन्होंने 1955 में तोड़ी हैं। उस वक्त की वो तस्वीरें मौजूद हैं, मैं अटैच कर दूंगा। ये जनाब उम्मत की खिदमत थी। 400 साल तक एक काबे को 4 फिरकों में बांटा हुआ था उन्होंने। कहते नहीं उम्मत को जोड़ा ये हुआ था कि कहते हैं चारों हक में एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। आज मुझे बताएं कोई गोरा मुसलमान और वो काबा शरीफ जाए तो वो पहले तो फैसला करेगा ये काबे के अंदर 4 लादा से इस्लाम है, अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, ये 4 इमाम इधर क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है गड़बड़ बाद में हुई है। हाँ जी, बाद में हुई है। शाह वली उल्लाह दिलवी ने लिखा है कि 4वीं सदी हिजरी के अंदर तकलीद, अंधी तकलीद की बिदत का आगाज हुआ। ये हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में उन्होंने लिखा है। मैंने कई देवबंदी मुफ्तियों को पूछा, उनको भी नहीं था पता, जो कहते हैं हमने सिलेक्टिव पढ़ी थी हुज्जतुल्लाह अल बालिगा। जी हाँ, शाह वली उल्लाह ने लिखा है सब तो वड्डी बिदत उम्मत इच फिरका वारियत, इमामों के नाम के ऊपर अंधी तकलीद है। उन तो छोड़े कुछ नहीं, उनका इससे पहले मुसलमान इस कामों में इन्वॉल्व नहीं थे। फिर उन्होंने हनफियों को भी सही रगड़ा लगाया इस मसले में। उन्होंने कहा बुखारी और मुस्लिम की सेहत के ऊपर उम्मत का इत्तफाक है, इनसे बुग़्ज़ रखने वाला अहले सुन्नत से खारिज है। सबसे ज्यादा बुग़्ज़ हनफी रखते हैं क्योंकि उनकी नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम के मुताबिक नहीं है। यानी रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन, उल्टा कोई रफुल यदैन शुरू कर दे उसे कहते हैं अनकरीब कादियानी हो जाएगा। और कादियानी तो थोड़े पर आ जाए। हाँ जी, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी और हनफी कादियानी। कादियानी फिक में हनफी है, वो बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं। और इन्होंने क्या मशहूर किया, जो रफुल यदैन शुरू करे वो कादियानी हो जाता है। कितना बड़ा झूठ मशहूर किया। तो आप लोग हमें कादियानियों के साथ मिलाएं तो फिर हम तो बताएंगे कि कादियानी तो आप लोगों के भाई हैं भाई, वो तो आप लोगों के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। इस वक्त जो उनके मुरब्बी हैं उनकी तो बकायदा वीडियो रिकॉर्ड है कि हम हनफी हैं। You follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. तो देख लें अल्लाह के फजल से इन्होंने जो जो मुलम्मा कारी की हुई थी ना झूठ की, एक एक करके उतरती जा रही है अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फिरका वाराना सारे के सारे मामलात इनके बुजुर्गों ने खराब किए। एक बंदा उठ के सर्जन वाला काम कर रहा है, उसको ये कह रहे हैं कि ये चीरा क्यों लगाता है? भाई सर्जन का तो काम ही चीरा लगाना है। होम्योपैथिक अद्वियात देने वाले वाइजीन वो किसी डॉक्टर सर्जन को गिला नहीं कर सकते। मेरे पास तो मरीज ही वही आता है कि जिसका इलाज ही चीरे से होगा। दुनिया में कोई होम्योपैथिक दवाई नहीं है कि अगर किसी शख्स का बाईपास होने वाला है और वो आप उसको दवाई दें, ना एलोपैथिक दवाई काम आती है ना होम्योपैथिक। वो सीधा इधर ग्राइंडर चलाते हैं, पसलियां तोड़ते हैं, दिल निकालते हैं और फिर ये पांव से एक नस निकाल के टांग में से उधर फिट करके उसे बाईपास करते हैं। अब जो बंदा ये काम करता है उसे आके अगर कोई एक भोला भाला आलिम दीन ये समझाए कि जी जरा मुजादला एहसन तरीके से किया करें, ये आपको चीरा लगाना ग्राइंडर लगाना क्या जरूरी होता है? उन तुम पता ही किसी गाल नहीं अल्लाह दे बंदे, मैं क्या तेन तेरे से तरसी खावांगा मैं। चलो आप करके बता दें, आप भी सर्जन वाला काम करें, इसी तरीके से लोगों की चीखें निकलेंगी। आर्थोपैडिक सर्जन के पास जो लोग जाते हैं ना, जब वो बाजू चढ़ाता है तो चीखें निकलवाता है। वो क्यों ना निकलवाए भाई, इससे बगैर वो बाजू चढ़ नहीं सकता। आज तक आर्थोपैडिक सर्जन को तो किसी ने नहीं कहा कि भाई आपकी क्लिनिक से हर वक्त चीखों की आवाज आती है। लोग कहते हैं उसका काम ही ऐसा है। सरकार हमारा भी काम ऐसा है। हाँ, अल्लाह के फजल से ये काम भी है और बाकी काम भी हम करते हैं। होम्योपैथिक इलाज भी है। मेरे दुरूद शरीफ के फजाइल के ऊपर भी 5-5 घंटे के लेक्चर है। नमाज के प्रैक्टिकल के ऊपर भी मेरे लेक्चर्स हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम की फजीलत पे भी, सुबह शाम के अज़कार के ऊपर भी, फर्ज नमाज के बाद के अज़कार के ऊपर भी, एक एक टॉपिक के ऊपर। ये तो जनरल स्टोर है और फ्री है बिल्कुल। तुम लोग चंदे लेके काम करते हो, हम अपनी जेब से खिला के करते हैं। यह फर्क है। तो सर्जन वाला काम जो कर रहा है उसे आप करने दें। अगर आप नहीं कर सकते तो ये तो ना कहें कि आप इस तरह नहीं इस तरह कर लें, भाई तुझी करके दस दो। नहीं इंजीनियर साहब ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये आप ही कर सकते हैं, तो फिर मनु करन दो। सीधी जी गल है।